میرا نام روحی ہے اور میری اماں ابا کے ساتھ میری زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ میری اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا جب میری یہ خوشی سے بھری زندگی ختم ہو گئی اور دکھوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب میں 2.5 سال کی تھی تب میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میری اماں پڑھی لکھی تھی اور ملازمت بھی کرتی تھی، اسی لیے ابا کے جانے کے بعد بھی انہوں نے ملازمت نہیں چھوڑی۔ انہیں لگتا تھا کہ اس سے میری پرورش اچھی طرح سے ہو پائے گی۔ میری اماں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی محنت سے کمائی پیسوں سے ہمارا گزارا چلانے لگی تھی۔ میری اماں کا خواب تھا کہ میں بھی پڑھ لکھ کر ان کے جیسی مضبوط عورت بنوں تاکہ مجھے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لیکن ماں کو کہاں معلوم تھا کہ برا وقت اتنی جلدی آ جائے گا۔ ایک دن میری اماں اسکول سے واپس آ رہی تھی، تب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ صبح مجھے اسکول چھوڑنے والی میری ماں ہنستے ہنستے ودا ہو کر گئی تھی، لیکن کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ آخری وقت میں بھی مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اماں کے جانے کے بعد میرے ماموں اور مامی آئے۔ میری اماں کے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں جو سب اپنے اپنے گھروں میں بس چکے تھے۔ اماں نے خود اپنی قوت سے اپنے بہن بھائیوں کی زندگی بسائی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ اب میرے پاس میرا کوئی اپنا نہیں بچا۔ گھر کے لوگ کچھ دن تک تو میری دیکھ بھال کرتے رہے، پھر دھیرے دھیرے اب سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں الجھ گئے۔ اماں کے بغیر میری زندگی ویران سی ہو گئی تھی اور اب میرا ہر دن ایک نئی مشکل لے کر آتا تھا۔ اماں کے بغیر اس سونے گھر میں اب بس تنہائی ہی میری ساتھی تھی۔ میری جوائنٹ فیملی میں میرے 3 چچا تھے۔ میرے ابا میرے تینوں چچا مجھ سے بڑے تھے، لیکن سب دھیرے دھیرے اپنے بال بچوں اور بیویوں میں مصروف رہنے لگے۔ تب تک میں اماں کے جانے کے غم سے ابھری نہیں تھی۔ میں بس دن رات بستر پر پڑی سوچتی رہتی۔ دھیرے دھیرے اماں کی موت کا دوسرا ہفتہ بیت گیا، پر میری بڑی چچی نے پورے گھر کا سارا بوجھ ڈال دیا۔ پہلے تینوں چچا اور میری اماں گھر کا کام کاج مل کر کرتے تھے اور آپس میں اچھی دوستی رکھتے تھے، جس سے کسی کو کام کا بوجھ نہیں لگتا تھا۔ لیکن میری اماں کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا میں سب کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ اب سب مجھے اپنی مرضی سے جیسا چاہیں ویسا استعمال کرنے لگے، کیونکہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ دونوں چچا باہر رہتے تھے اور رات کو ہی گھر آتے تھے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اماں کے مرنے کو پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ماموں مجھ سے ملنے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ تب میرے ماموں نے بڑی چچی سے پوچھا کہ روحی اتنی اداس کیوں ہے؟ تو چچی نے کہا آپ کی بھانجی کے نخرے اب ہم سے سنبھلتے نہیں، وہ پورا دن کمرے میں بند رہتی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ تب میرے ماموں کو ایسے لگا جیسے انہیں بہت ضروری بات کہنی ہے۔ ماموں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے۔ پھر ماموں نے میری ساری چیزیں باندھنے کو کہا اور اس کے بعد ماموں مجھے لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ ماموں کے گھر جانے کے بعد بھی میری زندگی میں سکون نہیں آیا، کیونکہ میری مامی میری موجودگی سے خوش نہیں تھی۔ انہوں نے ماموں سے کہا کہ تم اس لڑکی کو کیوں لائے ہو؟ تب ماموں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی اور یہ بھی ہمارے لیے ہماری بیٹی جیسی ہے۔ تب مامی کو بہت غصہ آیا اور وہ ناراض ہونے لگی، پر ماموں نے کہا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھیں گے۔ پھر ماموں نے مجھے وہاں پر ایک کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ اس کے بعد میں کالج جانے لگی۔ مامی کا برتاؤ میرے ساتھ ہر دم خراب ہو رہا تھا، پھر بھی میں سارے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کالج سے لوٹتے ہی گھر کا کام کرنے لگتی، پھر بھی مامی ہر وقت مجھے تانے مارتی رہتی تھی، لیکن میں سب خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ میرے ماموں کی بڑی بیٹی بشرا کے لیے امیر گھر کا رشتہ دیکھ رہی تھی۔ بشرا کا سلوک بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی تھی، اور ان کی چھوٹی بیٹی جو پہلے تو مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی، اب وہ بھی مجھ سے دوری بنانے لگی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، لیکن میں چپ چاپ سب کچھ سہتی رہتی تھی۔ یہاں بھی میں اکیلی اور بے بس محسوس کرتی تھی۔ میرے لیے زندگی کا مشکل دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ہر دن ایک نیا چیلنج میرے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے، شہر کے ایک بڑے رئیس آدمی کا رشتہ میری مامی کی بڑی بیٹی بشرا کے لیے آیا۔ تب میری مامی بہت خوش تھی کیونکہ ان کی بیٹی کے لیے ان کے من پسند رشتہ آ گیا تھا۔ اب دونوں خاندانوں نے سب باتیں طے کر لی اور ان کی بیٹی کی شادی کا دن آ گیا۔ شادی کے لیے مامی نے مجھے بھی بہت اچھے کپڑے پہنائے، ویسے ہی جیسے اپنے بچوں کے لیے خریدے تھے۔ مجھے وہ نئے کپڑے پہن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر مامی نے کہا دیکھو تمہیں سارے کام سنبھالنے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے،
तब मैंने कहा, मामी आप फिक्र न करें, मैं सब देख लूंगी। लड़के वाले अभी तक नहीं आए थे। तब मैं मामी के कमरे से कुछ सामान लाने गई। जैसे ही मैं मामी के कमरे से सामान लेकर बाहर निकल रही थी, अचानक वो सारा सामान मेरे हाथ से गिर गया। तब एक आदमी सामने आया और बोला, मैडम क्या तुम्हें दिखता नहीं है? फिर मैंने जल्दबाजी में सामान उठाए जाने लगी, लेकिन उस आदमी की नज़र मुझ पर थी। शायद मुझे पहली बार देखकर वो हैरान था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पसंद कर बैठा है। शादी की तकरीब अच्छी चल रही थी, लेकिन वो लड़का बार बार मुझे ही देख रहा था। वो मेरे मामू के बेटे का दोस्त था। मामू के बेटे ने उसे अपनी बहन की शादी पर बुलाया था। शादी की तारीख भी कुछ वक्त के बाद रखी गई थी। शादी की तैयारियों में मैं मामी का बहुत साथ दे रही थी, लेकिन इस चक्कर में कॉलेज नहीं जा पा रही थी। मेरी पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ के कामों में इतनी उलझी हुई थी कि मुझे इसका बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर कुछ ही दिनों के बाद बुशरा की शादी का दिन आ गया। तब तक मैं घर के कामों में इतनी उलझी हुई थी कि कुछ जरूरी कपड़े रखना ही भूल गई थी। काम का इतना बोझ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या याद रखना है। मेरा दिमाग जैसे काम करना भूल गया था। जब मामी को कपड़े नहीं मिले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया। मेहमानों के सामने तो वो दिखावा करती थी जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रही हूँ, लेकिन असल में मुझे सुनाने के लिए वो बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगी। बार बार कहने लगी कि तू मेरी बेटी के कपड़े रखना कैसे भूल सकती है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कपड़े ठीक से मामी की ही अलमारी में रखे थे, लेकिन वो कपड़े वहां नहीं मिले। मुझे लगा मामी जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। तब मामी ने मुझसे कहा कि तू अपने आप को हमारे घर का हिस्सा मत समझना। मैं तुझे अपने शौहर की वजह से यहाँ रख रही हूँ। तेरे जैसी लड़की के लिए तो मेरे घर में जगह देना भी एक बहुत बड़ा एहसान है। तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया और अब तू पढ़ाई की धौंस जमाने लगी है। तुझे पढ़ाई का इतना शौक है ना, तो घर के कामों में हाथ बटा। तब उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं चुपचाप सुनती रही। आगे मेरी मामी बोली कि हम तुझे खाना देते हैं, यहाँ रहने के लिए अच्छा कमरा दिया है, तो बदले में तुझे थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तू मुफ्त में रहेगी, नौकरानी को भी काम करने पर ही जगह मिलती है। तेरी अम्मा की मौत हुई तो हमारे पास आई है, फिर भी तेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता। यही वजह है कि तुझे तेरी चच्ची ने यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो भी तेरा ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाई। तेरे में तो इंसानियत भी नहीं है। अच्छा होता तेरी अम्मा तुझे अपने साथ ही ले गई होती। मामी के ऐसे सख्त अल्फाज सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। तब मेरी नजर मामी के कमरे में रखे एक बक्स पर पड़ी। फिर मुझे अचानक याद आया कि बुशरा के कपड़े शायद इसी में होंगे। फिर मैंने जल्दी से वो बक्स खोला और कपड़े निकालकर मामी को दिए। इसके बाद मैं रोते हुए कमरे से बाहर निकल रही थी कि फिर से मैं उसी लड़के से टकराई। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था, इसीलिए मैंने कहा, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? हर बार मेरे ही सामने आ जाते हो, देख कर नहीं चल सकते? लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों की आदत हो गई है जो बार बार मेरे सामने आकर टकराते हैं। आगे से आंख खोल कर चलना। मेरे इस जवाब पर उसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर मैं चुप हो गई और बस रोते रोते चली गई। अब शादी का दिन आ गया था और सबको हॉल जाना था। तब मामू का बेटा और उसके दोस्त मुझे भी ले जाने के लिए आए। तब मैं रास्ते में कई बार उसी दोस्त से मिलती रही, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। शादी के दौरान मुझे दुल्हन के कमरे का सारा सामान गाड़ी में रखने के लिए कहा गया। मैं दुल्हन के कमरे में गई थी, फिर मामू के बेटे के उस दोस्त के सामने आ गई। इस बार मैंने गुस्से में कह दिया, तुम्हें हर बार मेरे ही सामने क्यों आना होता है? तुम दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो? तब उसने गुस्से से जवाब दिया, पहली बार जब टकराए थे तो उसमें मेरी गलती थी, लेकिन इसके बाद तुम ही बार बार मेरे सामने आ जाती हो। पहले मुझे इल्जाम दे रही थी और अब खुद को टकरा रही हो। तब उसके तीखे लफ्ज सुनकर मैं चुप हो गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी कि शायद मेरी ही गलती थी, मुझे इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हर बार जल्दबाजी में आकर उससे टकराना सही नहीं था। खैर शादी तो ठीक ठाक से हो गई थी, लेकिन शादी के बाद भी मेरी मामी ने मुझे जीने नहीं दिया। शादी के बाद अब मैं घर का सारा काम संभालने लगी थी। मामी ने मुझे बावर्ची खाने का सारा काम सौंप दिया था। मैंने पहले भी खाना नहीं बनाया था, क्योंकि पहले ये सब बुशरा करती थी और मैं तो बस कॉलेज जाती थी और फिर आराम करती थी। तब मामी ने ताने देते होते थे, तुझे खाना बनाने भी नहीं आता। फिर उन्होंने मुझे मोबाइल दिया और कहा, देख आजकल सब मोबाइल पर सब कुछ सीख सकते हैं। तब मैं खाना बनाने सीखने में इतनी मसरूफ हो गई कि मेरी पढ़ाई का नुकसान होता रहा। घर के कामकाज करके थक कर चूर हो गई थी और कॉलेज गए हुए भी 2 महीने हो गए थे। तब मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
जब मैं तैयार होकर निकलने लगी तो मामी ने देख लिया। तब वो बोली, कहाँ जा रही है? मैंने कहा, मामी कॉलेज जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए कॉलेज गए। तब मामी ने गुस्से से कहा, अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठकर काम काज संभाल, अब शादी ब्याह का वक्त नहीं रहा, तुझे घर के ही काम करने होंगे। तब मैंने उनसे मिन्नत की कि मामी प्लीज मुझे जाने दो, कॉलेज से आकर मैं सारा काम संभाल लूंगी। इतने में मेरे मामू आकर उन्होंने पूछा, अरे बेटा कॉलेज क्यों नहीं जा रही? जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगी। मामू की बात सुनकर मैं जल्दी से कॉलेज चली गई। जब कॉलेज पहुंची तो वहां पर एक नई परेशानी मेरा इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर ने कहा, अब 3 महीनों की फीस एक बार में जमा करनी है क्योंकि इम्तिहान पास आ रहे हैं। तब मैंने प्रोफेसर से कहा कि मैं कल आकर फीस जमा करवा दूंगी। उस रात को सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तब मामू ने कहा, तुम्हारी कॉलेज की फीस जमा कर देनी चाहिए। तब मैंने मामू से पैसे मांगे तो मामू ने कहा, मैं तेरी मामी को फीस के पैसे दे दिए हैं, उनसे ले लेना जाकर और जमा करवा देना। तब मुझे सुकून आया, अब मुझे फीस की फिक्र नहीं थी। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने से पहले मामी से पैसे मांगने गई तो मामी ने गुस्से से कहा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, पढ़ाई लिखाई का क्या करना है, घर का काम देख। तब मैंने रोते हुए उनसे मिन्नतें करने लगी कि मामी प्लीज मेरी पढ़ाई बंद मत करवाओ। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं पढ़ाई करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं। तो मामी ने कड़े लहजे में कहा, तेरी माँ को पढ़ाई कराने के लिए उसके माँ बाप थे, हमारे पास इतनी जिम्मेदारी उठाने का वक्त नहीं है। तब मैंने मामी से माफी मांगी लेकिन वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और धमकी दी कि अगर तू मामा से जाकर कहेगी तो मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगी। अब मैं अंदर तक टूट कर रह गई और अपने कमरे में जाकर खूब रोई। उस दिन शाम तक रोती रही। शाम को मामी कमरे में आई और बोली, उठकर घर का काम काज संभाल, सारा दिन यूं ही पड़ी रहती है। मैं खामोशी से काम करने लगी। इसी दौरान मैंने मामा और मामी को आपस में बात करते सुना। मामा कह रहे थे कि कल शाम को रूही के लड़के वाले से मिलने का प्रोग्राम है। लड़की की माँ ने फोन पे कहा था कि वो रूही का रिश्ता हमारे घर लाना चाहती है। तब मामी ने कहा, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि रूही को पढ़ाई मुकम्मल हो, फिर इसका इसी साल रिश्ता तय कर देंगे, जल्द से जल्द शादी कर दें, फिर इसके बाद तुम्हारी भांजी की बारी आएगी। मामी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन मैं खामोश रही। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो प्रोफेसर ने मेरा बहुत बेइज्जती की और कहा, तुम्हारी फीस जमा नहीं है, तुम इम्तिहानात में नहीं बैठ पाओगी। तब मैं शर्मिंदा होकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही मामी ने फिर से काम में लगा दिया। मैं खामोशी से किचन में काम कर रही थी। तब लड़के वाले मिलने आए और मैंने उनके सामने नाश्ता पेश किया। फिर मामी ने मुझसे कहा, सुनो अंदर ही रहना, बाहर मत आना। इसीलिए मैं किचन में ही खड़ी थी। इतनी देर में मामू की दूसरी बेटी अनीला रोते हुए मेरे पास आई। मैंने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो वो बोली, मुझे नहीं मालूम था तू मेरे साथ ऐसा करेगी, क्या तुझे अच्छा लगेगा अगर अम्मा तेरे साथ भी ऐसा करे? फिर मैंने कहा, क्या बात कर रही हो तुम, आखिर हुआ क्या है? तब उसने कहा, तुमको पता है कि मैं उस लड़के सिकंदर को पसंद करती हूँ। कल उसकी माँ ने फोन करके हमारे घर रिश्ता लाने की बात कही। तब मैं समझी कि सिकंदर ने ये मेरे लिए कहा होगा, लेकिन आज जब उसकी माँ हमारे घर सिकंदर का रिश्ता लेकर आई तो मैं बहुत टूट गई। मुझे लगता था सिकंदर मुझे पसंद करता है, पर अब लगता है कि तू ही कुछ गड़बड़ की है। दरअसल सिकंदर मेरे मामू के बेटे का वही दोस्त है जो मुझसे बार बार टकरा रहा था, जिसके चलते मेरी कजन को मुझसे गलत फहमी हो गई थी। तब मैं उसे समझाने की कोशिश की कि ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इतने में सिकंदर की माँ ने मामी से कहा, हम इस बारे में अपने शौहर से गुफ्तगू करके आपको जवाब देंगे। और फिर वो चली गई। तब भी मामी को पता था कि अनीला सिकंदर को पसंद करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ताने मारे और कहा, तेरा तो सिकंदर के साथ चक्कर चल रहा था, वो अमीर लड़का है ना, इसीलिए तूने उसे अपने जाल में फांस लिया। मामी पहले से ही चाहती थी कि सिकंदर का रिश्ता उनकी बेटी से हो, लेकिन अब जब मेरे लिए रिश्ता उस घर से आया तो मामी को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, पहले उनकी बेटी की शादी होनी चाहिए, फिर मेरी। फिर मामी ने मुझ पर बुरी तरह के इल्जामात लगाए, जिन्हें मैं खामोशी से सुनती रही और रोती रही। बाद में मामू ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा सिकंदर के घर से तेरे लिए रिश्ता आया है, सिकंदर तुझे पसंद करता है, सिकंदर तुझे पसंद करता है और तुझसे शादी करना चाहता है। तब मैंने कहा, मामू मुझे सिकंदर पसंद नहीं और ना हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी है, मुझे नहीं पता उनके घर से रिश्ता क्यों आया है। तब मामा ने मेरी बात सुनी और सिकंदर के खानदान को मना कर दिया। अगले दिन सिकंदर की माँ हमारे घर आई और मामू से बात करने लगी। उन्होंने कहा, हमारा बेटा आपकी भांजी को पसंद करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। तब मामू ने कहा, हमारी भांजी को आपका बेटा पसंद नहीं। लेकिन सिकंदर की माँ ने कहा, बस एक बार उसे समझा कर तो देखें। फिर मामू ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा मुझे पता है तुम्हारी मामी तुम पर झूठे इल्जामात लगा रही है,
लेकिन अगर तुम्हें सिकंदर पसंद है तो ये रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा है। तब मामू ने मुझे समझाया कि सिकंदर का खानदान अच्छा और अमीर है, ये रिश्ता मेरे मुकद्दर से मिला है। तब मैंने मामू की बात मानी और उनके कहने पर हाँ कर दी। इस तरह मेरा रिश्ता सिकंदर से पक्का हो गया। अब मेरी शादी में 2 साल का वक्त था, तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लेकिन फीस ना होने की वजह से प्रोफेसर ने मुझे फिर से डांटा और कहा कल से फीस लेकर आना, नहीं तो कॉलेज मत आना। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं कॉलेज में ही बैठकर रोने लगी। तब मेरी क्लास का एक लड़का जो अक्सर मुझे देखता रहता था मेरे पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब मैंने उन्हें अपनी फीस का मसला बताया। उसने मेरी बात सुनकर अपनी जेब से पैसे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए और कहा, तुम अपनी फीस जमा करा लो। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, ये रख लो, ये पैसे तुम्हें पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं रोज तुम्हें प्रोफेसर के जरिए जलील होता नहीं देख सकता, लिहाजा ये पैसे ले और तू फीस जमा करा दे। जब तेरे पास पैसे होंगे तब मुझे वापस कर देना। उसकी इस बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शुक्रिया कहा और उसकी दी हुई रकम से अपनी फीस भर दी। अब मेरा सबसे बड़ा मसला हल हो गया था। घर पर मामी को लगा था कि कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद कर दी है। अगले दिन जब मैं घर आई तो मामी को लगा आज भी मैं रोकर ही आऊंगी, लेकिन मुझे चुपचाप देखकर वो हैरान हुई। मैंने अगले कुछ दिनों में पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरा क्लास फेलो कॉलेज नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरे ऊपर उसका उधार चुकाने का दबाव था ताकि उसका एहसान चुकाऊं। एक दिन जब वो कॉलेज आया तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे पैसे कब वापस करने का सोचा है। तब मैंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मामू शहर से बाहर गए हुए हैं, पैसों का इंतजाम होते ही मैं तुम्हें लौटा दूंगी। लेकिन उसने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है, नहीं तो मेरे पास तुम्हें लेकर और भी तरकीबें हैं। तब मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई और पूरी तरह से घबरा गई। घर आकर मैं परेशान हो गई। तब सिकंदर मुझसे मिलने आया। जैसे मुझे देखते ही हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों है? लेकिन मैं कुछ बोले बगैर कमरे में चली गई। अगले दिन मामी से फीस के पैसे मांगे तो उन्होंने कह दिया कि पैसे नहीं है। मैं पूरी रात परेशान रही और इधर वो क्लास वालों मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। अब तो सिर्फ मुझे 10 घंटे का वक्त दे गया था। अगले दिन जब मैं मामी के साथ बाजार गई तो अचानक मेरी नजर अपने उस क्लास फेलो पर पड़ी। उसे देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि वो बार बार मुझे मिलने के इशारे कर रहा था। जब मैं चुपचाप उसकी बात को नजरअंदाज कर गई, लेकिन दिल में फिक्र बढ़ती जा रही थी। अब उसके दिए हुए 10 घंटे ही बचे थे। अगले दिन उसका मेरे पास फोन आया। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरे पैसे वापस नहीं करने तो कल मेरे घर आ जाना। याद है ना, मैं तुम पर पैसा खर्च किया था, मेरी मेहरबानी का गलत फायदा मत उठाना। तब मैंने कहा, भाई बस थोड़ा सा वक्त दे दे, पैसों का इंतजाम होते ही तुम्हें दे दूंगी। लेकिन वो ब्लैकमेल करने लगा। वो बोला, मुझे पैसे चाहिए या कुछ और, 2 घंटे में मेरे घर नहीं तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये सुनकर मैं रात भर टेंशन में रही, नींद भी नहीं आई। सुबह उठते ही मेरे घर के, तब मैं डरी सहमी उसके घर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में ही मुझे सिकंदर मिल गया। मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने मुझे बहुत डांटा और फिर जेब से पैसे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने पैसे अपने क्लास वालों के मुंह पर मार दिए। मैं सिकंदर को बुरा लड़का समझती थी, मगर वो अच्छा निकला, जबकि अपने क्लास वालों को अच्छा समझकर उससे पैसे ले लिए, मगर वो बुरा आदमी निकला। फिर कुछ साल बाद मेरी सिकंदर से शादी हो गई।